Hello everyone, welcome to the channel Olympiad Guruji. Today we are here to solve a beautiful question of Australian Mathematics Olympiad, and I will be solving this question with 7 methods. So please watch these videos right till the end. चलिए start करते हैं. So the question goes like the sequence A1, A2, A3 and so on is defined by A1 equals to 1 and for n greater equals to 2 it is defined by this recurrence relation, that is an equals to a1 plus a2 up to an minus 1 into n. Then prove that 2018 square divides a 2018. तो हम लोग सबसे पहले तो रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने सीखेंगे और रेकरेंस सॉल्व करने के बाद ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे. ठीक है बच्चों? तो इट इज लाइक an equals to a1 plus a2 up to an minus 1 into n. ये रिलेशन 1 हो गया. So I can write an plus 1 as a1 plus a2 an into n plus 1. This is relation 2. So I'll multiply relation 1 throughout with n plus 1 and relation 2 with n in order to cancel the most complicated terms. So when we subtract equation 2 from equation 1, then it becomes n times an plus 1 minus n plus 1 times an. Okay, and this is equals to n into n plus 1 into an. Hence an plus 1 is equal to n plus 1 square upon n into an. तो अगर an plus 1 n plus 1 square upon n into an है तो मैं an को क्या लिख सकता हूँ? an को लिख सकता हूँ मैं n square upon n minus 1 into an minus 1. In the similar fashion an minus 1 को क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ n minus 1 का whole square on n minus 2 into an minus 2 and so on. So I'll apply the same thing in this very relation. Hence an plus 1 is equals to n plus 1 square upon n into n square upon n minus 1 into n minus 1 square upon n minus 2, and by the end it is 3 square upon 2 into a2, and a2 is given to us, and no, it is not given to us, but we can find a2. It is very simple to find. So okay, is it really a2? Like if we take an minus 1, then it is an minus 1 here. Sorry, n minus 2. यहाँ पे 2 लेने का मतलब है यहाँ पे 3 रहा होगा, तो हम a2 को भी फिर लिख सकते हैं सिमिलरली ना. a2 को भी लिख सकते हैं, लाइक a2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू a1. तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना. तो an प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? ये तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी एक कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो an प्लस 1 इज इक्वल टू n plus 1 into factorial n plus 1 upon 2. So put n equals to 2017 in order to get a 2018. So it is a 2018 is equal to 2018 into factorial 2018 upon 2. तो फैक्टोरियल 2018 को मैं लिख सकता हूँ ना 2018 इंटू फैक्टोरियल 2017. ये हो जाएगा 2018 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2017 अपॉन 2, और ये तो इंटीजर होगा ही होगा. सो इट इज
2018 square into some integer k. Hence, we can conclude that 2018 square divides a 2018. Hence, we are done with method 1. आइए मेथड 2 से करते हैं। तो मेथड 2 में भी हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व ही कर रहे होंगे। यहां पर मैंने क्या एज्यूम करा, a1 प्लस a2 अप टू an को मैंने bn एज्यूम कर लिया। सो द डिफाइनिंग इक्वेशन बिकम्स bn minus 1 is equals to bn minus 1 into n। रीअरेंज करने के बाद मुझे मिल जाएगा n plus 1 into bn minus 1 for all n greater equals to 2। रिकर्सिवली अगर हम इसको लिखेंगे then it comes out to be n plus 1 into n minus 1 and it will end up with 3 times of b1। So it is nothing but 1 by 2 times of factorial n plus 1। But we are not done with this because it is bn and we have to find an। Okay, hence मैं लिख सकता हूं ना bn minus 1 is equal to an। So an equals to bn है 1 by 2 times factorial n plus 1 minus factorial n। So it is n by 2 times of factorial n। Obviously अगर a 2018 निकालूंगा ये हो जाएगा 2018 का स्क्वायर टाइम्स सम इंटीजर, 2018 square into some integer। So it proves that 2018 square divides a 2018। Hence we are done with method 2। चलिए अब method 3 पे चलते हैं। Before we begin with the solution, let me prove a basic result of number theory। So that goes like, if GCD of Bn is equals to 1 and n divides AB, then n divides A। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। From the property of greatest common divisor, I can write it as bx plus ny equals to 1, where x and y are integers। X and y are integers। So I'll multiply this expression throughout with a. Reason being, since n divides ab, so I can write ab equals to n times of z, where z is also an integer। Alright, so this becomes abx plus any equals to 1, and it is, insert this value here, then ab is nzx plus any equals to 1। Take n as common, then it is zx plus a into y is equal to 1। Obviously this is an integer, sorry, this is a, we multiplied here with a now, so this is a, so n divides a। So this basic result is proved। Now we will use this basic result in solving this question। Okay, as we did in the first method, we got n times an plus 1 is equals to n plus 1 square into an। Okay, so it implies that
plus 1 square divides n into an plus 1. इसको b एज्यूम कर लो, इसको a एज्यूम कर लो, तो हमारा रिजल्ट क्या था कि अगर कोई नंबर a इंटू बी को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हो जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड्स a n प्लस 1। रीजन बी, since n and n plus 1 are co-prime, then obviously n and n plus 1 square are also co-prime. एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर ले लो 4 and 5 स्क्वायर, सिंस 4 and 5 को प्राइम है तो 4 and 5 स्क्वायर भी तो को प्राइम ही हो जाएगा ना, तो इसकी एचसीएफ कितनी होगी 1। बच्चों ये जो सिंबल है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट का, ये एचसीएफ की सिंबल है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वी हैव प्रूव दैट n plus 1 square an divides an plus 1, so put n equals to 2017, so it becomes 2018 square divides a 2018. So we are done with method 3. Hope you like watching my videos, then please hit the like button. In case you are new at this channel, then subscribe my channel and share with others as well. चलिए मेथड 4 पे चलते हैं। From the question it is clear that n divides an. Okay, since n divides an, then we have got to prove that n also divides an upon n. अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन फिर डन हो जाएगा। ठीक है, तो an अपॉन n क्या है हमारे पास, an अपॉन n है a1 प्लस a2 अप टू an माइनस 2 प्लस an माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 an माइनस 2 प्लस, अगेन इस an माइनस 1 को फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ ना, a1 प्लस a2 अप टू an माइनस 2 इंटू n माइनस 1। मैं रिमाइंड करा दूं कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, फॉर n ग्रेटर इक्वल्स टू 2 इट गोज लाइक a1 a2 अप टू an माइनस 1 इंटू n। तो अगर ये an है तो मैं an माइनस 1 को लिख सकता हूँ ना, a1 प्लस a2 अप टू an माइनस 2 इंटू n माइनस 1। सेम चीज यहां मैंने करी है। ये क्या हो गया, आप देखो काफी सारे टर्म तो कैंसिल हो गए, दिस मल्टीप्लाइड विद माइनस 1, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी यहां से। तो देन वी आर लेफ्ट विथ okay, then we are left with a1 plus a2 up to an minus 2 into n। तो an अपॉन n मेरा ये रिलेशन आ गया, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है n डिवाइड्स an अपॉन n। See, if n square divides an, it implies that n square into some integer x is equal to an। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं ना, n into x equals to an upon n। ठीक है ना, तो यहां से क्या प्रूफ होता है, सिंस x एक इंटीजर है तो n into some integer equals to an upon n, इसका मतलब है n an upon n को डिवाइड करता है। इसलिए मैंने ये प्रूफ किया कि अगर n an upon n को डिवाइड करता है तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा कि n स्क्वायर an को डिवाइड करता है। तो n स्क्वायर अगर an को डिवाइड करता है तो पुट n इक्वल्स टू 2018, then 2018 square will divide a 2018, and hence we are done with method 4। चलिए अब मेथड 5 पे चलते हैं।
a1 plus a2 up to an minus 2, इसको मैं लिख सकता हूँ ना an minus 1 upon n minus 1 for all n greater equals to 3 from original relation। जो मेरा ओरिजिनल रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में ना, फ्रॉम ओरिजिनल इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, फॉर n ग्रेटर इक्वल्स टू 3, n में n ग्रेटर इक्वल्स टू 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे n की वैल्यू एंड में 2018 रखनी है, तो मुझे बॉदर नहीं करना है कि n इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसे रीअरेंज कर दूं, then it becomes an equals to an minus 1 upon n minus 1। an को मैं लिख सकता हूँ ना, an को a1 plus a2 plus a3 up to an minus 2। तो अप टू an minus 2 की वैल्यू तो ये रखी है, तो एंड में क्या बचा an minus 1 और इनटू क्या हो जाएगा n। तो एलसीएम लेके अगर मैं ऐड करूं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट बिकम्स n स्क्वायर अपॉन n minus 1 into an minus। तो अगेन हम नंबर थ्योरी वाले बेसिक फैक्ट को यूज करेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करा था। सिंस n and n minus 1 are co-prime, so I can say that n square divides an for all n greater equals to 3, hence 2018 square divides a 2018। so we are done with method 5। ओके, मेथड 6 में हम लोग इंडक्शन यूज कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है वो है an इक्वल्स टू a1 a2 a3 अप टू an minus 1 into n, and this is true for n greater equals to 2 and a1 की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट कर दूं, a2 इक्वल्स टू हो जाएगा a1 into 2, so it is 1 into 2। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 की वैल्यू हो जाएगी a1 plus a2 into 3 and it is 1 plus 2 into 3, so it is 3 into 3। सिमिलरली a4 क्या हो जाएगा a1 plus a2 plus a3 into 4, so it is 12 into 4। if you observe closely then there is a pattern, like मैं इसको लिख सकता हूँ 1 into 2, मैं लिख सकता हूँ 2 into फैक्टोरियल 2 अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज 3 into फैक्टोरियल 3 अपॉन 2। अगर मैं यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं देन इट इज 4 into फैक्टोरियल 4 अपॉन 2। इस पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं कि an कुछ ऐसा रहा होगा n into फैक्टोरियल n by 2। बट मुझे अपने इस क्लेम को जस्टिफाई भी करना होगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तभी हमें ओलंपियाड में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। हमारे पास बेस कंडीशन तो है ही कि a1 की वैल्यू कितनी है 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू हमने निकाली थी अभी ये है ना। सिमिलरली a3 a4 ये सब बेस कंडीशन की तरह काम करेगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन an is equals to what, n times sigma ar and r varies from 1 to n minus 1। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस a1 की वैल्यू 1 है तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस से डिफाइन नहीं की गई है, इसीलिए मैंने उसको सेपरेट कर दिया। 1 प्लस सिग्मा ar r varies from 2 to n minus 1 and it is 1 plus sigma r 2 to n minus 1। तो मैं ar को क्या लिख सकता हूँ r into फैक्टोरियल r by 2। ये हो गया r into फैक्टोरियल r by 2, 1 by 2 को बाहर कर लिया। It is n times 1 plus
1/2। अब इस r को मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ r प्लस 1 माइनस 1। अब r प्लस 1 माइनस 1 से जब फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई होगा देन इट बिकम्स फैक्टोरियल r प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल r। ये हो जाएगा फैक्टोरियल r प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल r। तो ऑब्वियसली सिग्मा तो लगी हुई है, तो इस तरह इसको अगर मैं सम कर दूं ये आ जाएगा n इंटू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल 2। So it becomes n into factorial n by 2। Hence proof an की जो वैल्यू है वो n into factorial n by 2 है। तो अगेन put n equals to 2018, so it is 2018 स्क्वायर into सम इंटीजर के। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया। अब देखिए मेथड 7 में मैं सिर्फ हिंट देता हूं। अपने पास जो रेकरेंस रिलेशन दे रखी है उससे मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेवलप करूंगा और फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। तो मेरे पास an की वैल्यू आ जाएगी n इंटू फैक्टोरियल n by 2। अब रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के देयर आर सेवरल वेज, तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।